to clutch. Okay, clutch is very important component of any automobile. Okay, because clutch is used to engage or disengage the transmission. जो इंजन से जो पावर आ रहा है उस पावर को हमको पहुंचाना है कहां तक, हमारे व्हील तक पहुंचाना है, सो दैट आवर व्हीकल कैन रन। तो उस चीज को हम लोग क्लच के हेल्प से जो है हम उसके मदद से मींस ट्रांसमिशन सिस्टम के हेल्प से हम उस काम को करते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर हमको पावर को डिसएंगेज करना होता है, ठीक है ना। कब करना होता है? व्हेन यू वांट टू चेंज द गियर, व्हेन यू वांट टू चेंज द गियर, उस समय हमको डिसएंगेज करना होता है, तो वी यूज क्लच। और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उस समय हम देखते हैं कि स्टार्ट करते ही साथ गाड़ी आगे नहीं भगती है, ठीक है ना। तो उस समय भी क्लच जो है ऑपरेट हुआ रहता है, ठीक है। तब जाकर के गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद हम जब चाहते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। सो द फंक्शन ऑफ क्लच इज मेजर। So you can see the definition: clutch is used to engage or disengage the engine to the transmission or gearbox. Okay, and you have to remember that the clutch is fitted between the engine and gearbox. We have already showed you the diagram, the layout of the vehicle. In that you have already seen that the clutch is fitted between the engine and gearbox. Okay, when the clutch is engaged position, the engine power or rotary motion of engine crankshaft is transmitted to the gearbox and then to the wheels. When the clutch is disengaged, the engine power does not reach to gearbox although engine is running. Important बात है कि जब क्लच को हम इंगेज करते हैं उस समय इंजन का पावर व्हील तक पहुंच जाता है, ठीक है। और जब क्लच को डिसएंगेज किया जाता है उस समय इंजन का पावर जो है गियर बॉक्स या व्हील तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इंजन रन करता रहता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इंजन जो है बंद नहीं हुआ, इंजन रन कर रहा है, ठीक है। Then the clutch is also used to allow shifting or changing of gears when vehicle is running, ठीक है। For shifting gears, clutch is first disengaged, then gear is shifted and then clutch is engaged. Clutch has to be disengaged to stop the vehicle and also at the time of idling, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग जानते भी हैं because you also ride the bike. Okay, so when you use the clutch, you also know very well. Okay, the next is main parts of clutch. Main parts of clutch. The first part is the driving member, second part is driven member, okay, and third part is operating member, ठीक है। Driving, driven and operating member. The driving member has a flywheel which is mounted on the engine crankshaft. A disc is bolted to the flywheel which is known as pressure plate or driving disc, ठीक है। जो ड्राइविंग मेंबर होता है उसमें एक फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील इज अ रोटेटिंग एलिमेंट, ठीक है, विच हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना, फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। तो ड्राइविंग मेंबर जो होता है वो उसमें एक फ्लाईव्हील होता है और वो इंजन की तरफ लगा होता है, इंजन की तरफ, ठीक है ना। जो ड्रिवन मेंबर होता है, द ड्रिवन मेंबर इज अ डिस्क कॉल्ड क्लच प्लेट। ड्रिवन मेंबर को हम कहते हैं क्लच प्लेट, ओके। एंड ये होता है गियर बॉक्स की तरफ होता है जो ड्रिवन मेंबर होता है। दिस प्लेट कैन स्लाइड फ्रीली टू एंड फ्रो ऑन द क्लच शाफ्ट, ठीक है। जब आप लोग लैब में आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा इसको, ठीक है। ये जो क्लच प्लेट होता है ये फ्रीली क्लच के शाफ्ट में ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। मूव करने के लिए इसको बहुत ही मिनिमम स्पेस दिया जाता है, अबाउट 2 mm 3 mm लाइक दैट, ओके। बट ये फ्रीली मूव कर सकता है। एंड थर्ड वन इज ऑपरेटिंग मेंबर. Operating member consists of a pedal or lever which can be pressed to disengage the driving and driven plate. Operating member means in your bike there is a clutch in your left side, ठीक है, and with the help of this clutch you operate the clutch and you disengage. Similarly, in case of four wheelers there is a pedal
With the help of this pedal, you just operate the clutch. Okay, so this is the operating member. So the main part of clutch is driving member, driven member, and operating member. Okay, next is types of clutch. Okay, types of clutch is very much important, and you have to study all types of clutch. So first clutch is friction clutch, and second one is fluid flywheel. Friction clutch and fluid flywheel. Okay, so this is the friction clutch, and second one is fluid flywheel. So friction clutch means what? It means there are two plates which is getting contact, and because of the friction the clutch works. Okay, but in fluid flywheel there is no mechanical attachment, only there is the fluid inside the clutch, and with the help of fluid the clutch operates. Okay, so there is a difference between the friction clutch and fluid flywheel. फ्रिक्शन क्लच में आपका दो प्लेट होंगे, वो दोनों प्लेट आपस में कांटेक्ट में आएंगे और उस तरीके से इंगेज और डिसएंगेज होगा. बट फ्लूइड फ्लाईव्हील में जो है कंपोनेंट्स आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, इसमें फ्लूइड फील होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है वो क्लच पूरा वर्क करता है. ओके, देन जो फ्रिक्शन क्लच होता है, ये जो फ्रिक्शन क्लच है, फ्रिक्शन क्लच के और डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, और वी हैव टू स्टडी ऑल दीज टाइप्स. फर्स्ट इज कोन क्लच, देन सिंगल प्लेट क्लच, देन मल्टी प्लेट क्लच, देन सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, देन सेंट्रीफ्यूगल क्लच. इन सभी का जो नाम रखा गया है ना, बिल्कुल आप जब इसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि उनके वर्क के हिसाब से इनका नाम रखा गया है. कोन क्लच वर्क या फिर उनके जो उनका जो डिजाइन है उसके हिसाब से. कोन क्लच, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल. The friction clutch works on the fact that the friction is caused when two rotating discs come into contact with each other. On the other hand, the fluid flywheel works on the transfer of energy from one rotor to other by means of some fluid. Friction clutch may be either wet or dry type. A wet clutch is operated in an oil batch, whereas a dry clutch does not use oil. ठीक है, जो फ्रिक्शन क्लच होता है, ये फ्रिक्शन क्लच ये भी दो टाइप का होता है. ठीक है ना, वेट और ड्राई टाइप. वेट टाइप में जो है ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और ड्राई टाइप में ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ठीक है ना, ये जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है वेट टाइप में, वो सिर्फ उस क्लच प्लेट को सिर्फ डुबा करके रखता है. ठीक है ना, ताकि उसका रीजन है कि वो एक तरीके का हीट को रिड्यूस करने का भी काम करता है. क्योंकि जब क्लच काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है, जब उसको वो लंबे समय तक वर्क करता है, तो उस समय हमको कूलिंग की भी जरूरत पड़ती है. इस कारण से उसको वेट रखा जाता है. ठीक है ना, और दूसरे पर्पस भी है, दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी है, जिस कारण से जो है अलग अलग क्लच बनते हैं, वेट और ड्राई टाइप. ठीक है ना. So this is the classification of clutch, friction clutch, and the friction clutch is having 5 types: cone clutch, single plate clutch, multi plate clutch, semi centrifugal clutch, and centrifugal clutch. And the another type of clutch is fluid flywheel, and in the fluid flywheel there is no any mechanical contact, only the fluid inside is responsible to transfer the energy from engine to the gearbox. Okay, next is principle of clutch. Principle of clutch, ठीक है, it operates on the principle of friction. ठीक है, हम फ्रिक्शन क्लच की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, it operates on the principle of friction when two surfaces are brought in contact. When two surfaces are brought in contact and are held against each other due to friction between them, they can be used to transmit power. If one is rotated, then other also rotates. One surface is connected to the engine and other to be transmission shaft of automobile. Thus,
clutch is nothing but a combination of two friction surfaces. मैंने आपको बताया कि क्लच जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है फ्रिक्शन सरफेस और एक होता है प्रेशर प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट के साथ एक फ्लाईव्हील लगा होता है जो कि इंजन की तरफ होता है, और जो प्रेशर प्लेट होता है वो गियर बॉक्स की तरफ होता है, और जो प्रेशर प्लेट होता है वो फ्री होता है शाफ्ट में मूव करने के लिए, ठीक है ना, और वो मूवमेंट करने के लिए उसको बिल्कुल बहुत ही स्मॉल स्पेस दिया जाता है, 1 mm 2 mm 3 mm लाइक दैट। Next is, you can see the diagram here. There is a two plate, ठीक है। This left plate is known as friction plate, which is towards the engine, and the right plate, this right plate is known as pressure plate, which is towards the gearbox, ठीक है। The first diagram shows that the clutch is disengaged position, okay, when you operate, and the second one is engaged position. और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि जब हम क्लच को ऑपरेट करते हैं उस समय हम क्लच को डिसएंगेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और नॉर्मली क्लच हमेशा इंगेज्ड पोजीशन में ही रहता है, ठीक है। नॉर्मली क्लच इज ऑलवेज रिमेन इन engaged position when you operate the lever. On that situation you are going to disengage the clutch. It is very important, this point is very important, okay. So there is some terms. W is the axial load applied. What is W? This is axial load applied. ये लोड कहां से लगा? When you operate the lever, when you operate the pedal, उस समय you are applying the load, ठीक है ना। इसका जब हम आगे अरेंजमेंट देखेंगे तो ये एक्सियल डायरेक्शन पे लगता है ये लोड, so this is therefore it is called axial load applied. And mu is the coefficient of friction, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन प्लेट है उसमें हम उसका जो सरफेस है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना, नहीं तो ये स्लिप करने लगेगा, ये दोनों प्लेट एक दूसरे पे स्लिप करने लगेंगे, ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्लच प्लेट काम नहीं करेगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द क्लच, एंड द टी इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड, ठीक है, क्योंकि दिस इज द रोटेटिंग एलिमेंट. So in rotating element, the torque is very much important because torque has to be transmitted from engine to the gearbox. And R is the effective mean radius of friction surface. ये जो आपका जो friction plate है, ठीक है ना, friction plate जिसको clutch plate भी कहते हैं, उसका mean radius है capital R. So T equal to mu WR, torque equal to mu WR. This is the general formula. This is the general formula of torque, which is being transmitted to the gearbox. Mu coefficient of friction, W is the axial load applied, and R is the mean radius of friction surface. Okay? सर Yes. सर जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्लच इंगेज रहता है कि डिसएंगेज? जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्लच इज इन इंगेज्ड पोजीशन. मैंने बताया कि लेकिन सर क्लच लीवर हमेशा खींचे नहीं है ना? इंगेज्ड पोजीशन में ही रहता है, याद रखना, ठीक है ना. Clutch is always in engaged position. When you are operating the lever, on that situation you are going to disengage, ठीक है ना. सर तो अब आप जब बोलोगे इंगेज कि रहेगा तो पावर नहीं, देखो क्या होता है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो क्लच तो इंगेज रहता है, लेकिन गियर जो है वो उसकी लिंकिंग नहीं हुई रहती है ना. जो आपने गियर लगाया, ठीक है, जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तब वो गियर जाकर के इंगेज होता है, तब पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना. लेकिन आपने अगर देखो, मैं आपको जब गियर बॉक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब गाड़ी को ऑन करते हैं उस समय इंजन घूमता है, और क्योंकि क्लच इंगेज है तो क्लच भी घूमता है,
और क्लच के बाद पावर गियर बॉक्स में चला जाता है, ठीक है ना। हाँ। और गियर बॉक्स में जो मेन शाफ्ट है वो घूमता रहता है, लेकिन जो उसका जो फाइनल जो शाफ्ट होता है वो मूव नहीं करता है। जब फाइनल शाफ्ट मूव करेगा, जब हम गियर को अप्लाई करते हैं, मींस जब जब तुम गियर को चेंज करते हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, तब वो फाइनल शाफ्ट कनेक्ट हो जाता है और फाइनल शाफ्ट से जो है हमारा व्हील में मोशन जाता है। अच्छा। ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी जब गियर बॉक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखेंगे, गियर इज ऑलवेज रिमेन इन एंगेज पोजीशन एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग you are operating the lever, on that situation you are going to disengage the clutch. Okay, ठीक। okay, next. Okay, now we have to study all the clutches, all the types of clutch. Okay, so first type is cone clutch. Cone clutch is the first type, and you can see the diagram of cone clutch. Okay, the diagram of cone clutch. So you can see this is a pedal which you have to operate for disengaging the clutch. This is the flywheel. You can see this is a flywheel in left hand side. Okay, इंजन शाफ्ट, इंजन की तरफ फ्लाईव्हील होता है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। इंजन है, इंजन का ये शाफ्ट है, और शाफ्ट से फिर हमने ये बोल्टेड जॉइंट दिख रहा है आपको, बोल्टेड की हेल्प से इस फ्लाईव्हील को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो सेंटर दिख रहा है, ये जो सेंटर है, यहाँ पर आपको एक शाफ्ट दिख रहा है, ये वाला शाफ्ट, ठीक है ना। फिर ये जो एकदम से राइट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपका गियर बॉक्स होगा, गियर बॉक्स, ठीक है। और ये बीच में लगा हुआ है, ये दिख रहा है हमको स्प्रिंग। द रोल ऑफ स्प्रिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ there is no spring, so after disengaging the clutch, when you want to engage the clutch, so the clutch will not engage if there is no spring. क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये पुश करके रखेगा क्लच को, हमेशा इंगेज पोजीशन पे ये स्प्रिंग ही पुश करके रखता है। जब हम ये जो स्प्रिंग है हमेशा प्रेशर प्लेट को पुश करके रखता है, इसलिए क्लच हमेशा इंगेज पोजीशन में रहता है, ठीक है ना। जब हम इस पैडल को ऑपरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के बैकवर्ड साइड में, किसी ने अपना अनम्यूट करो, किसी की तरफ से आवाज गूंज रहा है, मेरा आवाज। सर मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ हाँ पूछो। सर जब क्लच को डिसएंगेज किया जाता है, हाँ हाँ, तो उसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहता होगा हर किसी व्हीकल के लिए, सब में तो हाँ, अलग अलग डिसएंगेज होता होगा। बिल्कुल, ये डिस्टेंस बहुत ही माइनर होता है, 1 mm 2 mm 3 mm के आसपास का डिस्टेंस होता है, ये सिर्फ माइनर एकदम, मतलब ठीक है। ऐसा हर मतलब उसमें गियर बॉक्स के अरेंजमेंट के हिसाब से और शाफ्ट के अरेंजमेंट के हिसाब से होता होगा। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट सेकंड। ये जो दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का, ये रेड दिख रहा है पोर्शन, ठीक है। इस रेड पोर्शन में ये छोटा सा यहाँ पर जो शाफ्ट जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा, यहाँ पर एक स्प्लाइंड शाफ्ट होता है। स्प्लाइंड मतलब जिसमें की लाइनिंग्स बनी रहती है, ठीक है ना। उस स्प्लाइंड शाफ्ट में ये जो प्रेशर प्लेट होता है वो हल्का सा मूव कर सकता है, ठीक है ना, हल्का सा वो मूव कर सकता है, जो कि बहुत माइनर डिस्टेंस होता है। मैंने बताया कि 2 mm 3 mm का डिस्टेंस होता है, उतने में ही ये मूव करता है और उतने में ही ये डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अपन पूरी वर्किंग जब पढ़ेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील, ठीक है ना। और ये जो फ्लाईव्हील है, इसी में इसी का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन प्लेट या क्लच प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और उस क्लच प्लेट में लगी रहती है ये फ्रिक्शन लाइनिंग,
मतलब इसका जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस का जो ये साइड वाला जो पोर्शन होता है, वहां पर जो होता है ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, देखो ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है यहां से लेकर के पूरा ये, ठीक है, ये जो प्लेट है ये हमारा प्रेशर प्लेट कहलाता है, प्रेशर प्लेट, ठीक है ना, प्रेशर प्लेट कहलाता है। और इस प्रेशर प्लेट को ये स्प्रिंग हमेशा प्रेस करके रखता है, ठीक है ना, किसकी तरफ, क्लच प्लेट की तरफ, या फिर इस डायग्राम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फ्लाईव्हील की तरफ उसको हमेशा प्रेस करके रखता है। वो जब वो प्रेस करके रखता है तो हमेशा वो एंगेज पोजीशन पे रहता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस पैडल को ऑपरेट किया, इस पैडल को पुश किया। जैसे ही हम इस पैडल को पुश करते हैं, ये देखो ये पूरा अरेंजमेंट है पैडल का, ये लीवर अरेंजमेंट है, और यहाँ पर ये जो ज्वाइंट दिख रहा है ये एक पाइवोट ज्वाइंट है, पाइवोट, और यू कैन से हिंज ज्वाइंट, ठीक है। इस हिंज ज्वाइंट, ये जो हिंज ज्वाइंट है ये किससे कनेक्टेड है, ये आपके प्रेशर प्लेट से कनेक्टेड है, ये प्रेशर प्लेट से। जब हम इस लीवर को ऑपरेट करते हैं तो यहां पर एक ऐसा फोर्स इस डायरेक्शन पे लगता है, राइट हैंड की तरफ। जब राइट हैंड की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये स्प्रिंग को अपोजिट डायरेक्शन पे ये प्रेस करेगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड की तरफ फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि राइट हैंड की तरफ फोर्स लगेगा तभी तो ये प्रेशर प्लेट है वो इस फ्लाईव्हील से दूर जाएगा, और जब वो फ्लाईव्हील से दूर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही हम इस लीवर को छोड़ते हैं तो वापस से ये स्प्रिंग जो होता है उसको टुवर्ड्स द फ्लाईव्हील प्रेस करके रख देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका काम करता है, ठीक है ना। दिस प्रेशर प्लेट एंड इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्योंकि ये कोन क्लच इसका नाम है, ठीक है ना, तो इसके कंपोनेंट तो क्या क्या हो गए, एक ये तो फ्लाई व्हील हो गया, ठीक है ना, और एक ये हो गया आपका प्रेशर प्लेट जो कि राइट हैंड साइड में है, ठीक है, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट, ठीक है। अब क्योंकि कोन क्लच के केस में इसके अलग से कुछ इसको नाम दिया गया है, ठीक है, उस नाम को हम समझ लेते हैं। जो फ्लाईव्हील वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको बोला जाता है फीमेल कोन, ठीक है ना, फीमेल कोन बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये जो ये वाला जो पोर्शन है, ये राइट, ये वाला जो राइट में जो पोर्शन है इसको बोला जाता है मेल कोन, ठीक है ना। अब ये मेल कोन इस फीमेल कोन के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो ये क्लच जो है वो एंगेज पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। और यहां पर देखो ये जो सरफेस दिख रहा है जहां पर ये फ्रिक्शन लाइनिंग बनी है ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ये जो सरफेस है ये एक तरीके का कोन शेप में है, कोन शेप में है, इसलिए भी इसका नाम कोन क्लच है, ठीक है। तो क्या होता है कि मेल कोन फीमेल कोन के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और क्लच जो होता है वो इंगेज पोजीशन पे रहता है, क्लच जो होता है वो इंगेज पोजीशन पे रहता है। 10 मिनट्स के बाद ये डिसएंगेज हो जाएगा, अपना सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। अपन कंटिन्यू करते हैं अभी। अब देखो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, व्हेन द क्लच इज एंगेज्ड the friction surfaces of the male cone are in contact with the female cone। मेल कोन जो है वो फीमेल कोन के कांटेक्ट में होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। अब ये कांटेक्ट में क्यों, मैंने बताया कि स्प्रिंग हमेशा मेल कोन को प्रेस करके रखता है, ठीक है ना। एंड द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इंजन टू द ट्रांसमिशन, और पावर जो है वो ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन आगे की तरफ वो ट्रांसमिट हो जाता है। व्हेन द क्लच इज डिसएंगेज्ड, डिसएंगेज करने का मतलब क्लच पैडल इज प्रेस्ड, यहां पर देखो इंगेज में बताया गया था क्लच इज नॉट प्रेस्ड, और डिसएंगेज में बताया जा रहा है कि क्लच इज प्रेस्ड, ठीक है ना। फिर क्या होगा, द मेल कोन स्लाइड्स अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। मेन कोन जो है, मेल कोन जो है वो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है, स्लाइड करता है। एंड द पावर डज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम द इंजन, पावर जो इंजन से ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है ना।
एडवांटेजेस क्या है देखो इस कोन क्लच के। द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस इज ग्रेटर देन द एक्सियल फोर्स। सर हाँ यस। सर ये फ्लाई व्हील से 100% पावर ट्रांसमिट होता है क्या सर क्लच में, क्लच प्लेट में? फ्लाई व्हील से 100% पावर ट्रांसमिट होता है क्या क्लच प्लेट पे? देखो मैकेनिकल कंपोनेंट है, थोड़े बहुत लॉसेस तो होंगे ही वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि देखो इंजन के अंदर जो पावर बनता है ना उसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ऐसे इंजन में, ठीक है। और जो व्हील में जो पावर जाता है उसको ब्रेक पावर बोलते हैं, एंड द ब्रेक पावर इज ऑलवेज लेसर देन द इंडिकेटेड पावर। तो बीच में जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट लगे हैं, फ्लाई व्हील, क्लच, ठीक है, फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, सभी में कहीं ना कहीं मैकेनिकल कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा पावर का लॉस होता है, ठीक है ना। नहीं तो सर ये बोल रहा हूँ जैसे फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट के बीच में स्लिपिंग होता है क्या? मतलब स्लिप करता है ये कि एकदम नहीं अच्छे नहीं, से स्लिप नहीं करता फ्रिक्शन? है। फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट एकदम चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, समझ लो। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा है कि आपको आप देखेंगे तो जो फ्लाई व्हील वाला जो पार्ट होता है ना, ठीक है, समझ लो कि इस कोन क्लच को देखो अगर ध्यान से, तो ये जो फ्लाई व्हील वाला पार्ट जो है, इसी फ्लाई व्हील में फ्रिक्शन लाइनिंग बना दी गई है दूसरे तरफ, ठीक है ना। तो अब ये तो उसी से चिपका हुआ है, समझ लो। फ्लाई व्हील के एक तरफ में फ्रिक्शन लाइनिंग बना दी गई है, ऐसा मटेरियल लगा दिया गया है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, तो ये तो उसी का पार्ट हो गया, ठीक है ना। हमारे पास लैब में दूसरे क्लच भी हैं, बड़े जो क्लच हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं ट्रक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से वो रहता है, ठीक है। ठीक। ठीक, तो आगे है अपना advantages. The normal force acting on the friction surface is greater than the axial force. Like in single plate clutch, the normal force acting on the friction surface is equal to axial force. देखो इसका जो एडवांटेज बता रहा है कि जो इसका जो नॉर्मल फोर्स होता है फ्रिक्शन सरफेसेस पे, वो एक्सियल फोर्स से ग्रेटर होता है। देखो नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा इस जगह पर, ये जो फ्रिक्शन सरफेस दिख रहा है ना, ऐसा लगेगा नॉर्मल फोर्स, इस तरीके से फ्रिक्शन सरफेस पे, यहां पर भी और ये नीचे की तरफ भी, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमेशा एक्सियल फोर्स कैसे लगेगा, एक्सियल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा नॉर्मल फोर्स जो होता है वो ग्रेटर होता है, और नॉर्मल फोर्स एक्सियल फोर्स से ग्रेटर होने के कारण से प्रॉपर ग्रिपिंग मिलती है इसको यहाँ पर, ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस है। जबकि सिंगल प्लेट क्लच में इसने बताया कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स। ये सिंगल प्लेट के बारे में बात कर रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, एक डिसएडवांटेज भी है कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कोन क्लच इज इफ द एंगल ऑफ कोन इज मेड स्मॉलर देन 20 डिग्री। ये जो कोन यहाँ पर बना हुआ है ना, ये जो कोन शेप आपको दिख रहा है यहाँ पर किनारे में, अगर इस कोन का एंगल आप 20 डिग्री से लेस रखते हैं, स्मॉल रखते हैं, तब क्या होगा, द मेल कोन टेंड्स टू बाइंड इन द फीमेल कोन एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसएंगेज द क्लच। 20 डिग्री से लेस होने के कारण क्या होगा कि जो मेल कोन है, एक बार अगर वो इंगेज हुआ, ठीक है ना, तो क्योंकि एंगल काफी ज्यादा कम है, तो वो डिसएंगेज होने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इट इज डिफिकल्ट टू डिसएंगेज द क्लच इफ द एंगल इज स्मॉलर देन 20 डिग्री, ठीक है ना। सो इसी कारण से ये इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हो गए, ठीक है ना। कोन क्लच, उसकी वर्किंग हो गई, उसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखो कोन क्लच का क्या क्या एप्लीकेशन है आप हमारे पास। कोन क्लच का एप्लीकेशन है, कोन क्लच इज यूज्ड इन लो पेरिफेरल स्पीड एप्लीकेशंस, ठीक है ना। कोन क्लच जो होता है वो लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज होता है, मतलब ऐसी गाड़ियां जो कम स्पीड में चलती है, ठीक है ना। कोन क्लच इज कॉमन इन ऑटोमोबाइल्स एंड अदर कंबशन इंजन ट्रांसमिशन। जनरली कोन क्लच का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स में जो इस्तेमाल किया जाता है उसका,
एंड कोन क्लच आर यूज इन पावर बोट्स। पावर बोट्स जो होते हैं, बोट्स वगैरह जो होते हैं ना, वहां पर जो है कोन क्लच का इस्तेमाल होता है पावर बोट्स में। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोन क्लच जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, कोन क्लच